میں کچھ وقت واضح عنوان آسمانی ماں محفوظ ترین پناہگاہ کے تحت آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹنا چاہوں گا۔ ماضی میں جب بچے کھیلتے ہوئے خطرے میں پڑ جاتے تھے تو وہ اکثر اپنی ماں کے اسکرٹ کے پیچھے چھپ جاتے تھے۔ پرانے دنوں میں بہت سی عورتیں ہانبوک پہنتی تھیں جن میں انڈر لائننگ اسکرٹس ہوتی تھیں۔ جب چوزے کھیلتے ہوئے خطرے میں ہوتے ہیں تو وہ مرغی کے پروں تلے چھپ جاتے ہیں۔ نیز کینگرو کے بچے بھی اپنی ماں کے پیٹ پر موجود تھیلی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کوالا بچہ بھی اپنی ماں کی پیٹ سے گوند کی طرح چپک جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ سب، کیا آپ نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہے؟ ان سب کے پاس ان کے باپ ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنی ماں کو کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کیا ماں باپ کی نسبت تھوڑی کمزور نہیں ہے؟ پھر بھی جب بھی ہم خدا کے بنائے مختلف جانوروں یا فطرت کو دیکھتے ہیں تو وہ سب کیوں اپنی ماں کی پیٹ سے گوند کی طرح چپکے رہتے ہیں؟ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی مرضی تمام فطرت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب بچے کھیلتے ہوئے خطرہ محسوس کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنی ماں کو پکارتے ہیں۔ جب بچے ماں پکارتے ہیں تو ماں جہاں کہیں بھی ہو وہ ان کی آواز پر سپر وومن کی طرح آتی ہے اور اپنے بچوں کے تمام خطرات کو دور کرتی ہے۔ چھوٹے بچے عموماً ایسے ہوتے ہیں۔ جب خطرہ اور مشکلات آتی ہیں تو وہ اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں اور اس کے اسکرٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ جب چوزے کھیل رہے ہوتے ہیں اور خطرناک جانور قریب آتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنی ماں کے پاس بھاگتے اور اس کے پروں تلے چھپ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کتے جیسا بڑا جانور ان پر جھپٹتا ہے تو ماں یہ سوچتے ہوئے سخت جان بن جاتی ہے کہ اگر تم نے کبھی میرے بچے پر انگلی اٹھائی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ہمیں اس حقیقت سے روحانی پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی جانور ان کی ماں کے سخت رویے کے باعث چوزوں کے پاس جانے کی جرات نہیں کرتا۔ کیوں ماں محفوظ ترین پناہ گاہ ہے؟ آج آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس ہمیں اس معاملے کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ یہ زمانہ بحران کا زمانہ ہے۔ نیز اپنے ارد گرد رونما ہونے والے مختلف حالات پر غور کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قوموں کے درمیان مسلسل جنگیں ہو رہی ہیں، موسمیاتی آفتیں کثرت سے رونما ہو رہی ہیں، اور زمین جہاں ہم رہتے ہیں کہ ماحولیاتی حالات کم سے کم محفوظ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں خدا ہمیں کہاں بھاگنے کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سیون کو بھاگو۔ تو پھر وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم سیون کو بھاگیں؟ سیون میں کون ہے؟ سیون کے محفوظ ترین جگہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں ماں ہے۔ اس معاملے کی غرض سے آئیں ہم اکٹھے دانیل کی کتاب باب 2 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ دانیل باب 2 آیت 1 میں یہ لکھا ہے کہ اور نبوکت نظر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ نبوکت نظر بادشاہ نے ایک بہت اہم خواب دیکھا تھا لیکن وہ اسے بھول گیا تھا۔ وہ شدت سے جاننا چاہتا تھا کہ خواب کیا تھا۔ اس وقت اس کے ارد گرد جادوگروں، کسدیوں اور فالگروں جیسے صلاحکار تھے جن سے وہ ملک میں مسائل پیدا ہونے پر مشورہ کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں ان سے پوچھوں تو وہ مجھے بتائیں گے، اس لیے اس نے ان سے پوچھا۔ لیکن اگر آپ آیت 11 دیکھیں تو انہوں نے کہا جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے۔ انگریزی کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ نہایت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی قابلیت سے باہر ہے اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا تھا؟ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ دیوتاؤں کے سوا کوئی بھی بادشاہ کے سامنے اس کو بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی کچھ دکھا سکتا ہے۔ یوں انہوں نے بادشاہ کی درخواست کو صاف صاف انکار کر دیا۔ ہم آیت 12 سے جاری رکھتے ہیں۔ اس لیے بادشاہ غضبناک
और सख्त कहर आलूदा हुआ और उसने हुक्म किया कि बाबल के तमाम हकीमों को हलाक करें। बादशाह ने कहा, तुम उस ख्वाब को भी जाहिर नहीं कर सकते जो मैंने कल रात देखा था। ताहम क्या तुम मुझे मेरी खुशकिस्मती अच्छा या बुरा नहीं बताते रहे, ये कहते हुए कि तुम मुस्तकबिल को जानते हो, जबकि हकीकत में तुम्हें एक ख्वाब भी नहीं मालूम। बस बादशाह सख्त कहर आलूदा हुआ, उसने उन सबको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। आयत 13। सो ये हुक्म जा बजा पहुंचा कि हकीम कत्ल किए जाएं। तब दानियल और उसके रफीकों को भी ढूंढने लगे कि उनको कत्ल करें। दानियल और उसके रफीक खुदा की खिदमत करते थे, इसलिए बादशाह ने उन सबको भी मार डालने का हुक्म दिया। उस वक्त दानियल ने बादशाह के सरदार अरयूक से कहा, मुझे चंद दिनों की मोहलत दे, मैं उसे ख्वाब बता सकता हूं। यूं दुआ करने के बाद दानियल को खुदा से मालूम हुआ कि बादशाह ने क्या ख्वाब देखा है। आए बाब 2 आयत 27 की तरफ जाते हैं। दानियल बाब 2 आयत 27 में यह लिखा है कि दानियल ने बादशाह के हजूर अर्ज की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालकीर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन कौन है? आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है। उसने समझाया कि ये सिर्फ खुदा ही हैं जो इन चीजों को जाहिर कर सकते हैं। तो फिर हम पूछ सकते हैं, इस जमाना में महफूज तरीन पनाहगाह क्या है? एक महफूज पनाहगाह ढूंढने की गर्ज से दुनिया में लोग अपनी तमाम दौलत, अपनी तमाम रवाबत और अपनी तमाम ताकत को इस उम्मीद के साथ जमा करते हैं कि जब कोई खतरनाक सूरत हाल पैदा होगी तो वो महफूज तरीन पनाहगाह को भाग जाएंगे। बाज लोग जेरे जमीन चले जाएंगे, बाज खलाई जहाजों से दूसरे सैयारों पर चले जाएंगे, या बाज लोग समुद्र के नीचे चले जाएं। वो हर तरह की तहकीक और तजुर्बात करते हैं, लेकिन खुदा क्या कहते हैं? खुदा कहते हैं कि वो जहां कहीं भी हो, वो अदालत से नहीं बच सकते और हर एक की अदालत की जाएगी। ताहम दानियल यहां कहता है कि कोई भेद को बयान नहीं कर सकता, लेकिन आसमान पर एक खुदा है और सिर्फ वही राज की बातें आश्कारा कर सकते हैं। उसने कहा, खुदा यकीनन मुझे इस बात से आगाह करेंगे, इसलिए मुझे चंद दिनों की मोहलत दो। और बाद में उसने बादशाह को दानियल बाब 2 में मूरत के मुतालिक ख्वाब बयान किया। जब बादशाह ने अपने ख्वाब की वजाहत सुनी तो उसे याद आया, ओ मैंने ये ख्वाब देखा था। ताबीर के बारे में क्या ख्याल है? ताबीर भी दुरुस्त थी। वो सोने का सर तू ही है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी, और चौथी सल्तनत लोहे की मानिंद मजबूत होगी। ये 10 उंगलियों की मानिंद 10 सल्तनतों में तकसीम हो जाएगी। यूं उसने बादशाह को दुरुस्त तौर पर बताया कि क्या होगा। नबूकदनेस्सर बादशाह अपने वक्त का सबसे ताकतवर आदमी था। उसने दानियल को सजदा किया जो महज एक कैदी था। इसके अलावा उसने कहा कि वो दानियल को वो सब देगा जो वो चाहता है। हम किताब मुक़द्दस से तस्दीक कर सकते हैं कि बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर हर तरह के कीमती खजाने दिए थे। दानियल ने क्या कहा था कि वो वाहिद कौन है जो इस सारे भेद की ताबीर कर सकता है? उसने कहा कि ये सिर्फ खुदा है। क्या दानियल ने नबूकदनेस्सर के ख्वाब को खुद ही समझा था? उसने ये खुदा से सीखा था और खुदा की बख्शी हिकमत से ख्वाब की ताबीर बयान की। क्या उसने नहीं की? तो फिर आज हमारे लिए महफूज तरीन और आखिरी पनाहगाह कहाँ है? सिर्फ खुदा ही हमें उस जगह के बारे में बता सकते हैं। दुनिया इसे नहीं जानती। वो एक ही किताब मुक़द्दस पढ़ते हैं, मगर इसके जवाब को ना तो समझते हैं और ना ही इसका इदराक करते हैं। ताहम आखिरकार हमें इस सब के बारे में कौन सिखाता है? क्या ये हमें सिर्फ इसलिए मालूम नहीं हुआ क्योंकि खुदा ने हमें इसके बारे में सिखाया था? आए मत्ती बाब 13 आयत 10 से देखते हैं। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा,
تو उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? आयत 11, उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ क्या की गई है? दी गई है। जैसे खुदा ने दानियल को दिखाया था, वैसे ही वो हमें भी सब कुछ दिखाते हैं। खुदा ने दानियल को नबूकदनेस्सर बादशाह का ख्वाब और यहां तक कि उसकी ताबीर भी बताई। तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर दूसरों के बारे में क्या ख्याल है, उनको नहीं दी गई। सबसे महफूज पनाहगाह क्या है? बहुत से लोग इसका जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ कौन हमें इस सवाल का जवाब बता सकता है? इसका जवाब सिर्फ खुदा ही हमें बता सकते हैं। जैसे खुदा ने दानियल को ख्वाब और उसकी ताबीर बताई और नबूकदनेस्सर के तजस्सुस को हल किया, इस जमाना में भी खुदा सिर्फ अपने फर्जंदों को बताते हैं कि महफूज तरीन पनाहगाह कहाँ है। उन्होंने कहा, मैंने ये तुम्हें बताया है, मगर दूसरों को नहीं। तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। आयत 12, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए क्या होता है नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। ये लिखा है कि अगरचे उनकी आंखें हैं पर वो नहीं देखते, उनके कान हैं पर वो नहीं सुनते, अगरचे उनके पास दिल है पर वो नहीं समझते। क्या ये सिर्फ खुदा नहीं है जो हमें इस तमाम भेद को जानने और समझने की इजाजत देते हैं? दानियल ख्वाब और इसकी ताबीर सिर्फ इसलिए नहीं जानता था कि वो अक्लमंद और ज़हीन था, और ना ही इसलिए कि वो एक आलिम और अजीम आदमी था। दानियल ने ख्वाब को जाहिर करने से पहले अपने दोस्तों के साथ खुलूसे दिल से खुदा से दुआ की थी। हम ये नहीं जानते, ऐ बाप बराह करम हमें इन सब बातों से आगाह करें। ये ऐसी चीज है जिसे हम अपने इंसानी कुव्वत से नहीं जान सकते। यूं दानियल, सदरक, मिसक और अबदनगो इकट्ठे हुए और खुलूसे दिल और मुस्तदी से दुआ की। आखिर में खुदा ने उन्हें नबूकदनेस्सर का ख्वाब और इसकी ताबीर बताई, ताकि इस मुल्क बाबल में, यानी गैर कौम में जो बुतों की परस्तिश करते थे, खुदा के जलाल को सरबुलंद करने के लिए एक अजीम काम किया जा सके। हत्ता के इलाहियात की डिग्री रखने वाला शख्स या सालों से मशक करने वाला पादरी भी किताब मुक़द्दस को खुद ब खुद नहीं समझता है। क्या वो समझता है? कौन हमें बताते हैं? इसीलिए यूहन्ना बाब 6 आयत 45 में यसू ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक वो खुदा से तालीम याफ्ता ना हो, चूंकि मेरे पास आने की राह आसमान के तमाम भेदों से बनी है, तो कोई मुझसे तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि खुदा उसे ना सिखाए। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। जब हम इन अल्फाज को देखते हैं तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि इस जमाना में महफूज तरीन पनाहगाह कहाँ है? नूह की कश्ती जैसी जगह कहाँ है? अगर हम किसी जगह के लिहाज से बात करें तो हम कहेंगे सयून, लेकिन वो जगह बजाते खुद हमारी हिफाजत की जमानत नहीं दे सकती। सयून में कौन है जो हमारी रूहों की हिफाजत और रहनुमाई करते हैं? क्या ये खुदा बाप और खुदा माँ नहीं है? इसलिए खुदा ने कहा, तुम सयून ही में झंडा खड़ा करो, पनाह लेने को भागो और देर ना करो, क्योंकि मैं बला और हलाकत शदीद को शुमाल की तरफ से लाता हूं। जब ऐसी मुश्किल घड़ी आती है तो हमें सियोन में किसको ढूंढना चाहिए? हमें आसमानी माँ को ढूंढना चाहिए। क्या वो गुमशुदा टुकड़ा नहीं है जिसे खुदा ने पोशीदा रखा है? इसके जरिए आज आए हम सच्चाई के कलाम पर गहरी नजर डालते हैं कि इस जमाना में महफूज तरीन पनाहगाह आसमानी माँ है। हम जकरिया बाब 14 खोलते हैं। खुदा हमें बता रहे हैं कि मुस्तकबिल करीब में जमीन पर किस किस्म की आफतें आएंगी। बाब 14 आयत 12, और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर यह अजाब नाजिल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा
और उनकी आंखें चश्म खानों में गल जाएंगी और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस रोज खुदावंद की तरफ से उनके दरमियान बड़ी हलचल होगी और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाएगा और यहूदा भी यरूशलेम के पास लड़ेगा और इर्द गिर्द की सब कौमों का माल यानी सोना चांदी और लिबास बड़ी कसरत से फराहम किया जाएगा और घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों, गधों और सब हैवानों पर भी जो उन लश्करगाहों में होंगे वही अजाब नाजिल होगा। ये लिखा है कि ये वो अजाब है जो सारे जमीन पर आएगा। उनकी आंखें चश्म खानों में गल जाएंगी और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। उन्होंने उस अजाब का जिक्र किया जो ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों पर भी नाजिल होगा। आइए हम सफनिया बाब 1 खोलें। हम सफनिया बाब 1 आयत 2 से देखते हैं। खुदावंद फरमाता है, मैं रोए जमीन से सब कुछ बिल्कुल नेस्त करूंगा, इंसान और हैवान को नेस्त करूंगा, हवा के परिंदों और समुद्र की मछलियों को और शरीरों और उनके बुतों को नेस्त करूंगा और इंसान को रोए जमीन से फना करूंगा। खुदावंद फरमाता है। आयत 14 की तरफ जाते हैं। सफनिया बाब 1 आयत 14। खुदावंद का रोजे अजीम करीब है, हाँ वो नजदीक आ गया, वो आ पहुंचा। सुनो खुदावंद के दिन का शोर, जबरदस्त आदमी फूट फूट को रोएगा। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन, वीरानी और खराबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, अबर और तीरगी का दिन, हसीन शहरों और ऊंचे बुर्जों के खिलाफ नरसिंगे और जंगी ललकार का दिन। और मैं बनी आदम पर मुसीबत लाऊंगा, यहां तक कि वो अंधों की मान चलेंगे, क्योंकि वो खुदावंद के गुनहगार हुए। उनका खून धूल की तरह गिराया जाएगा और उनका गोश्त निजासत की मानिंद। खुदावंद के कहर के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा, बल्कि तमाम मुल्कों यानी सारी दुनिया को उसकी गैरत की आग खा जाएगी, क्योंकि वो यकलख्त मुल्क के सब बाशिंदों को तमाम कर डालेगा। यहाँ ये खुदा की आखिरी अदालत के बारे में दर्ज है। आइए हम मलाकी बाब 4 की तरफ जाते हैं। बाब 4 आयत 1 में ये लिखा है कि क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानंद सुजान होगा, तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे की मानंद होंगे, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखो बुन कुछ ना छोड़ेगा। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो आफ्ताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाँव खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। यहाँ ये कहा गया है, देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानंद सुजान होगा। सफनिया बाब 1 में ये कहा गया है कि मैं इंसान और हैवान को नेस्त करूंगा। जकरिया बाब 14 में ये कहा गया है कि उनकी आंखें चश्म खानों में गल जाएंगी और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी, और घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों, गधों और सब हैवानों पर भी जो उन लश्करगाहों में होंगे वही अजाब नाजिल होगा। जब हम आग के साथ होने वाली आखिरी अदालत के बारे में इन तमाम नबूवतों का जायजा लेते हैं, तो ऐसा अजाब जहां आंखें चश्म खानों में गल जाएंगी और जुबानें मुंह में सड़ जाएंगी, और सफनिया बाब 1 जहां ये कहा गया है कि मैं इंसान और हैवान को यहां तक कि समुद्र की मछलियों को भी नेस्त करूंगा, तो क्या ऐसा वक्त आने पर हमें महफूज तरीन जगह को तलाश नहीं करना चाहिए? जिस तरह नूह के वक्त में निजात की महफूज पनाहगाह कश्ती थी, उसी तरह क्या सयून वो जगह नहीं है जिसे हमें इस जमाना में ढूंढना चाहिए? सयून एक महफूज जगह क्यों है? वहां कौन रहता है? क्या ज़बूर बाब 132 ये नहीं कहता कि खुदा ने सयून को चुना है और उन्होंने इसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है? दूसरे अल्फाज में ये खुदा का घर है, तो फिर ये महफूज क्यों है? वहां कौन रहता है? क्या खुदा बाप और खुदा माँ वहां नहीं रहते हैं? बाप और माँ अपने बच्चों को क्या करने के लिए कहते हैं? जब हम ऐसे बहरान, मुसीबत या आफत को महसूस करते हैं, तो वो हमें देर किए बगैर कहां भागने को कहते हैं? आइए हम यिर्मयाह की किताब बाब 4 की तरफ जाते हैं।
बाब 4 आयत 5 में यह लिखा है कि यहूदा में इश्तिहार दो और यरूशलेम में इसकी मुनादी करो और कहो कि तुम मुल्क में नरसिंगा फूंको, बुलंद आवाज से पुकारो और कहो कि जमा हो कि हसीन शहरों में चलें। वो हसीन शहर कहाँ हैं जहां हमें जाना चाहिए? तुम सयून ही में झंडा खड़ा करो, पनाह लेने को भागो और देर ना करो, क्योंकि मैं बला और हलाकत शदीद को शुमाल की तरफ से लाता हूँ। शेरे बब्बर झाड़ियों से निकला है और कौमों के हलाक करने वाले ने कोश किया है। ये लिखा है कि कौमों को हलाक करने वाला यानी दुनिया को तबाह करने वाले ने कोश किया है। जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो खुदा हमें देर किए बगैर फौरन कहाँ जाने को कहते हैं? वो हमें बगैर देर किए सयून को भागने को कहते हैं। तो फिर अगर हमें महफूज जगह मालूम है तो क्या हमें वहां अकेले ही जाना चाहिए? ये बेहतर होगा कि हम अपने वालिदैन, अपने बच्चों और अपने दोस्तों को बताएं ताकि हम उन सब की रहनुमाई निजात की राह पर कर सकें। सही? वो जगह सयून है और सयून में खुदा रहते हैं। खुदा के फर्जंदों के तौर पर हम सबको वाज़ेह तौर पर समझना चाहिए कि हमें सयून क्यों जाना चाहिए। क्या नबूवतों के मुताबिक हमारे जागने का वक्त नहीं है? आइए हम मत्ती बाब 24 आयत 42 पर एक नजर डालते हैं। आयत 42 कहती है, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। यसू ने बाब 24 और 25 में मुसलसल ताकीद की कि जागते रहो, सो मत जाना। अगर हम बेदार नहीं हुए तो आखिरकार हम ये सोचते हुए इस दुनिया में बह जाएंगे कि दुनिया में इतना करना ठीक है। क्या ऐसा नहीं है? दुनिया के मियार के मुताबिक ये ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसे मियारात भी हैं जो आसमान पर जाने वालों के लिए मुनासिब नहीं हैं। लिहाजा हमें अपने हवास को मद्देनजर रखते हुए अपने मियार कहाँ कायम करने चाहिए? हमें उन्हें खुदा की बादशाही के साथ हम आहंग करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगियां दुनिया के मियार के मुताबिक नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि अपने आप को खुदा की बादशाही यानी आसमानी मुमलिकत में रहने वालों के मियार के मुताबिक गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। बाब 24 आयत 45। बस वो दयानतदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे। मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में देर है, अपने हम खिदमतों को मारना शुरू करे और शराबियों के साथ खाए पिए, इसका मतलब है कि उसने अपना मुकर्रर करदा काम नहीं किया। हम नए अहद के फर्जंदों को नए अहद के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमें मुस्तदी से मुनादी करनी चाहिए। ताहम बाज़ औक़ात हम अपना मुकर्रर करदा काम करने में नाकाम रहते हैं और कुछ गैर मुतल्लका काम करते हैं। आयत 50। तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन कि वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और खूब कोड़े लगाकर उसको रियाकारों में शामिल करेगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। चूंकि ये चीजें हो सकती हैं, तो आसमानी बाप और आसमानी माँ हमें क्या करने को कहते हैं? वो कहते हैं जागते रहो, होशियार रहो। हमें जानना चाहिए कि हम किस जमाना में रह रहे हैं। जब ऐसे बहरान या खतरनाक सूरत हाल पैदा हो तो हमें महफूज तरीन जगह यानी आसमानी माँ यरूशलेम की बाहों में जाना चाहिए। अगर आप कोआला को देखें तो वो गोंद की तरह अपनी माँ की पीठ से चिपके रहते हैं और कभी नहीं गिरते। अगर आप कैंगरूस को देखें तो वो अपनी माँ की थैली के अंदर ही रहते हैं। कोई दूसरी जगह नहीं है जहां वो सुकून से रह सकें। जब हम छोटे थे तो हमारी माएँ कपड़े धोकर बाहर लटकाती थीं, तो हम उनके स्कर्ट के पीछे छुप जाते थे। फिर वहशी कुत्ता तो दूर की बात है, अगर चीता भी आ जाता तो हम नहीं डरते थे। हम सब के पास बचपन की ऐसी यादें हैं।
کیا یہی وجہ نہیں کہ آسمانی ماں ہمارے ساتھ ہیں؟ اس لیے آئیں ہم جلد اپنے آس پاس بہت سے لوگوں کو یروشلم ماں کے وجود سے آگاہ کریں۔ ایسا کرنے سے آپ اور میں وہ بن سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے جلدی سے ان کو واپس لوٹنے کی بہت سی راہیں کھول سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آسمانی ماں کے وسیلہ تمام آسمانی خاندانی اراکین نئی طاقت، نئی ہمت اور بکثرت روحانی توانائی سے بھر جائیں اور خوشخبری کی منادی میں کسی چیز کی کمی نہ رکھیں۔ ہم پرمسرت لوگ ہیں کیونکہ ہمارے پاس آسمانی ماں ہے۔ ماں کے بغیر دنیا ایسی دنیا ہے جہاں زندگی نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر ماں ہی نہ ہو تو خواہ یہ حیوانی دنیا ہو، پودوں کی دنیا ہو یا مچھلیوں کی دنیا ہو، وہ دنیا زندگی کے بغیر دنیا ہے۔ یہ کس کی مرضی ہے؟ یہ خدا کی مرضی ہے جنہوں نے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اسے دیکھتے ہوئے ہم واقعی مبارک ہیں۔ ہم خوش ہیں کیونکہ ہمارے پاس آسمانی ماں ہے۔ کسی بھی مصیبت یا کسی بھی مشکل صورتحال میں ہمیں ہمیشہ آسمانی باپ اور آسمانی ماں سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب آسمانی خاندانی اراکین بنیں گے جو آخر تک ان کی محبت کی راہ کو نہیں بھولیں گے۔ میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔